Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Ishfaq Maharvi, Professor of Chemistry. Today we will discuss the modern definition of organic compounds. Then we will see what are hydrocarbons and their derivatives with examples. Then the modern definition of organic chemistry. Some elements other than carbon and hydrogen with examples. And we will see some compounds which are organic in nature but they do not contain hydrogen, and we will share an important table of elements showing the valencies which will help you in writing the correct structures of organic compounds and organic species. And in the end of the lecture we will see some exceptions also. So first of all, we see that what are organic compounds. The compounds which contain either hydrocarbons or their derivatives are called organic compounds. Now we see that what are hydrocarbons. जैसा कि नाम से जाहिर है, हाइड्रोजन, कार्बन्स यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन्स. So covalent compounds of carbon and hydrogen only are called hydrocarbons. Since the bonds between carbon and carbon and hydrogen are formed as a result of mutual sharing of electrons, so these bonds are covalent in nature. So we see some examples of hydrocarbons like alkanes, cycloalkanes, alkenes, alkynes, and aromatic hydrocarbons, etc. Now we quote 3 examples of each class. Alkanes, these may be methane, ethane, propane, etc. When cycloalkanes, then these may be cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, etc. When alkenes, then these may be ethene, propene, butene, etc. When alkynes, then these may be ethyne, propyne, butane, etc. When we see aromatic hydrocarbons, then these may be benzene, naphthalene, anthracene, etc. Now we see that how are derivatives of hydrocarbons formed. Derivatives of hydrocarbons are formed by the substitution, that is replacement of hydrogen atom of hydrocarbon with an atom or group of atoms, that is functional group. So first of all we see that how are the derivatives of methane formed as a result of chlorination of methane, and halogenation of alkanes occur through free radical mechanism. So methane is CH4, it is a hydrocarbon, and when we replace its one hydrogen with chlorine, then it is formed chloromethane. We replace one more hydrogen with chlorine, then dichloromethane. Similarly, replacing one more hydrogen of methane, it will produce trichloromethane. Finally, replacing the fourth hydrogen of methane with chlorine, then tetrachloromethane is formed. These all are derivatives of methane, so these are also organic in nature. Similarly, introducing the OH group into methane, it will form methyl alcohol or methanol, and when we introduce nitro group, that is replacing the hydrogen of methane with nitro group,
through nitration, then nitromethane is formed. These are also organic compounds. Similarly, when we consider benzene is C6H6. It is an aromatic hydrocarbon. So when we substitute the hydrogen of benzene with chloro group, then chlorobenzene is formed. Introducing nitro group into benzene, nitrobenzene is formed. Introducing methyl group into benzene, then toluene is formed. These are also organic compounds. Now we see the modern definition of organic chemistry. It is the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons, that is covalent compounds of carbon and hydrogen only, and their derivative. ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम मुताला करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स का, और इनसे माखोज कंपाउंड्स, इनसे डिराइव्ड जो कंपाउंड्स हैं उनका। कार्बन चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंडामेंटल एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है, और इसके साथ हाइड्रोजन है जो ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजेंस एंड सम मेटल्स एटसेट्रा आर प्रेजेंट। अब हम देखते हैं कि अगर नाइट्रोजन मौजूद है तो फिर कौन कौन से फैमिलीज़, क्लासेस या कंपाउंड्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी से that when nitrogen is present, then nitroalkanes, nitrophenols, nitriles, amines, amino acids, acid amides, nucleic acids, etc. may be present. When oxygen is present, then alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives are present. When sulfur is present, then organosulfur compounds, for example thioalcohols, mercaptans, compounds like thiourea, thiophene, xanthate esters may be present. When halogens are present, then haloalkanes, these may be monohaloalkanes, dihalo, trihalo, tetrahalo, so on. Among these monohaloalkanes are called alkyl halides and acid halides, etc. When metals are present, then organometallic compounds, that is metalloorganic compounds, for example Grignard's reagent, N-butyl lithium, diethyl zinc, ferrocene, cobaltocene, etc. क्या बग़ैर हाइड्रोजन के भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉसिबल हो सकते हैं? यस, पॉसिबल हैं। जब हम CCl4 को देखते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, तो CCl4 में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसी तरह हेक्साक्लोरोईथेन C2Cl6, इसमें भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये भी ऑर्गेनिक है। इसी तरह हेक्साक्लोरोएसीटोन, इसका दूसरा नाम है हेक्साक्लोरोप्रोपानोन या परक्लोरोएसीटोन भी कहते हैं, इसमें भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको इंटरेस्ट दिलाने के लिए कि बग़ैर हाइड्रोजन के भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। नाउ वी शेयर
an important table showing the valencies of elements which will help you in writing the correct structures of organic compounds. और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स को सही लिखना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कार्बन एलिमेंट, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और इस पर नेट चार्ज कितना आता है. तो कार्बन के 3 केस हैं. पहला केस हर एलिमेंट का नॉर्मल होगा कि कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नॉर्मली 4 बॉन्ड्स बनाता है. तो 4 बॉन्ड्स के बनाते वक्त इस पर कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और इसका नेट चार्ज 0 होता है. जब कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है तो फिर इसकी 2 सूरतें हैं. 3 बॉन्ड बनाते वक्त इस पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं और उस वक्त इस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, जो कि केमिस्ट्री में हम कार्बोकैटाइंस लिखते हैं. तो उस वक्त कार्बन के 3 बॉन्ड होते हैं और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. इसी तरह कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है तो इस पर 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस वक्त इस पर नेगेटिव नेट चार्ज होता है और इनको हम कार्बोनाइन्स कहते हैं. अब इसके बाद हाइड्रोजन को देखते हैं. तो हाइड्रोजन का केस सिंपल है. ये 1 बॉन्ड बनाता है और इस पर जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 0 होते हैं और ये नेट चार्ज 0 रखता है. हैलोजन्स को देखें तो हैलोजन्स नॉर्मली 1 बॉन्ड बनाते हैं. तो इसके 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 0 नेट चार्ज होता है. लेकिन हैलोजन्स 2 बॉन्ड भी बनाते हैं तो इसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं और इस पर जो चार्ज है हैलोजन में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उस वक्त चार्ज पॉजिटिव होता है. अगर विनाइल क्लोराइड की कैनोनिकल फॉर्म लिखें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखें, तो उस वक्त क्लोरीन का एक लोन पेयर डीलोकलाइज होता है तो क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड्स बनाता है. इसके 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस पर नेट चार्ज 0 होता है. नाइट्रोजन 2 बॉन्ड भी बना सकता है, उस वक्त 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और चार्ज नेगेटिव होगा. नाइट्रोजन अगर लोन पेयर अपना शेयर कर दे, डीलोकलाइज कर दे, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, उस पर 0 फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और चार्ज पॉजिटिव होगा. इसके अलावा भी केसेस हैं लेकिन नॉर्मली ये है. ऑक्सीजन को देखें तो नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 0 नेट चार्ज होता है. ऑक्सीजन 1 बॉन्ड जब बनाएगा तो 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्ज इस पर नेगेटिव होगा, जैसे मेथॉक्साइडाइन, एथॉक्साइडाइन एटसेट्रा. ऑक्सीजन 3 बॉन्ड भी बनाता है, इस पर 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिर और ये इस पर चार्ज पॉजिटिव आता है. जब अल्कोहल्स में ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट करे तो ऑक्सोनियमाइन ऑफ अल्कोहल बनता है. सल्फ़र के केस में सल्फ़र जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्ज नेट 0 होगा. जब ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 0 इसका नेट चार्ज होगा. जब ये 6 बॉन्ड्स बनाएगा 0 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 0 इसका नेट चार्ज होगा. तो इस टेबल को अगर आप अच्छी तरह याद करें तो फिर आपको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स लिखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी. Now we see some exceptions in organic chemistry. That is, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि ना तो वो हाइड्रोकार्बन्स हैं और ना हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं. उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे करैक्टरिस्टिक फीचर्स भी नहीं होते. जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की कैटिनेशन का होना, सिमिलरिटी इन बिहेवियर का होना,
आइसोमरिज्म का होना, होमोलोगस सीरीज़ का बनना, फंक्शनल ग्रुप का होना, सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का होना, आइसोमरिज्म का होना, इस तरह के करैक्टरिस्टिक फीचर्स इनमें नहीं पाए जाते। बेशक इनमें कार्बन है। नो वी सी these exceptions. Now oxides of carbon, that is carbon monoxide, carbon dioxide, carbon suboxide etc. इसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड CS2। नेक्स्ट मेटल कार्बोनेट्स, जिनमें सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और एक नॉन मेटालिक कैटाइन अमोनियम का कार्बोनेट भी ऑर्गेनिक नेचर नहीं रखता। सिमिलरली मेटल बाइकार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटासियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम बाइकार्बोनेट एट्सेट्रा। नेक्स्ट मेटल सायानाइड्स, सोडियम सायानाइड, पोटासियम सायानाइड, अमोनियम सायानाइड एट्सेट्रा। नेक्स्ट मेटल सायानेट्स, सोडियम सायानेट, पोटासियम सायानेट, सिल्वर सायानेट और अमोनियम सायानेट एट्सेट्रा। मेटल थायोसायानेट्स, सोडियम थायोसायानेट, पोटासियम थायोसायानेट एट्सेट्रा। नेक्स्ट मेटल कार्बाइड्स, कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड एट्सेट्रा। एंड इन द लास्ट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर फ्लोरीन एट्सेट्रा। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन के होते हुए भी ये ऑर्गेनिक नहीं हैं। दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक्स।